જય અવધૂત. નવનાથ ધામની પાવન ભૂમિ પરથી આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે. નવનાથ ધામની પાવન ભૂમિ પર બિરાજમાન બ્રહ્મલીન પરમ પૂજ્ય સદગુરુ શ્રી સાનેદાદાના ચરણોમાં મારા સાષ્ટાંગ દંડવત પ્રણામ. જેમની નેતૃત્વ હેઠળ ધોતીમાન નાથ સંપ્રદાયની ધજા વિશ્વ ફલક પર લહેરાઈ રહી છે એવા પ્રખર પ્રવચનકાર પરમ પૂજ્ય શ્રી છોટેદાદાના ચરણોમાં મારા કોટી કોટી નમન. આપણા સૌનું જાણીતું અને માનીતું પખવાડિક શ્રદ્ધામય પુરુષાર્થનો નવો અંક આવી ચૂક્યો છે. તો પરમ પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીને નમ્ર વિનંતી છે કે આપણી સમક્ષ એ અંક રજૂ કરે. પરમ પૂજ્ય ગુરુદેવ. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. સર્વે વોલેન્ટિયર મિત્રોને નમ્ર વિનંતી છે કે આપ સૌ સુધી આ અંક પીડીએફના માધ્યમથી પહોંચાડવામાં આવશે તો પોતપોતાના સત્સંગ મંડળમાં સૌને પહોંચાડી દઈ. ગુરુ પૂર્ણિમાનો ઉત્સવ નજીક આવી રહ્યો છે તો ગુરુ પૂર્ણિમા અર્થે શ્રદ્ધામય પુરુષાર્થ પખવાડિકમાં ગુરુ પૂર્ણિમા શુભેચ્છા સંદેશ આપવા માટે આપ શ્રી 9925191398 પર સંપર્ક કરી શકો છો. શુભેચ્છા સંદેશ આપવાની વિગતો સૌને વિચાર ગંગાના વોટ્સએપ ગ્રુપ માધ્યમથી મોકલવામાં આવી છે. કોઈ પણ પ્રશ્ન હોય તો આપ અમને આ નંબર પર સંપર્ક અવશ્ય કરી શકો છો. આજે ગંગા દશેરાનો સુનહેરો અવસર છે. ભગીરથ નંદિની માં ગંગાના કરુણામયી નિર્મળ અને શીતળ જન્મમાં ત્રણેય જન્મોના પાપો હરી લે છે. મા ગંગાના દર્શનથી દિનદુખીઓના દુઃખ દૂર થાય છે અને એમને પરમાનંદ આનંદની અનુભૂતિ થાય છે. આવો જ પરમાનંદ આનંદ આપણે સૌએ આજથી 4-5 વર્ષ પહેલાં 3-4 જૂનના રોજ હરિદ્વારની પાવન ભૂમિ પર માણ્યો હતો. પરમ પૂજ્ય ગુરુદેવના પાવન મુખે ઈશાવાસ્યમ ઉપનિષદ સૂત્ર 5નો ભવ્ય કાર્યક્રમ આપણે હરિદ્વારમાં કર્યો હતો અને સૌ નાથ ભક્તોએ ઈશાવાસ્યમ સૂત્રની વિચાર ગંગાના શ્રવણ સાથે સાથે ગંગા શાહી સ્નાનનો પણ લાહો લીધો હતો. તો એ ખૂબ જ જોરદાર કાર્યક્રમ આપણો રહ્યો હતો. બીજું, મા વિમલા જનસેવા ટ્રસ્ટ હેઠળ પૂજ્ય ગુરુદેવના નેતૃત્વ હેઠળ કોવિડ સેન્ટરોમાં અને બિલ્લીમોરાના આજુબાજુના ગામ વિસ્તારોમાં ફૂટપાથ પર ભોજન વ્યવસ્થા પૂરી પાડવામાં આવે છે. કેરીનો રસ, પ્રેમ રસ એ સૌને આપણે પહોંચાડ્યો છે. યાદ રહે કે લોકડાઉનના કપરા ગાળામાં પણ આપણે પ્રેમ રસ ખૂબ જ મોટી માત્રામાં આજુબાજુ જેટલા બી કોવિડ અસરકારો હતા લોકડાઉનમાં એ સૌને પહોંચાડ્યો હતો. તો આ એક સુંદર અને ભવ્ય કામગીરી આપણા ટ્રસ્ટના માધ્યમથી થઈ રહી છે. આજનો ભંડારો પ્રવીણભાઈ પટેલ કુંભારિયા, હાલ અમેરિકા નિવાસી, એમના તરફથી છે. તો પરમ પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીને એ જ પ્રાર્થના કે એમના પર એમની કૃપા સદા વરસતી રહે. હવે આજના ગંગા દશેરાના પાવન દિને પરમ પૂજ્ય શ્રી છોટેદાદાને નમ્ર વિનંતી છે કે એમની વિચાર ગંગા પ્રવાહિત કરે. જય અવધૂત. દેવી સુરેશ્વરી
भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी धवल तरंगे शंकर मौली विहारिणी विमले मम मतिरास्तां तव पदकमले देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे ओ काशी क्षेत्रो तन्निवासो जानवी चरणोदकं गुरु विश्वेश्वर साक्षात् तारकं ब्रह्मणि निश्चितम् ओ हर हर गंगे भागीरथी हर हर गंगे भागीरथी हर हर गंगे भागीरथी हर हर गंगे भागीरथी। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त सदगुरुदेव की जय। नवनाथ चिंतन श्री गुरुदेव दत्त अलख निरंजन। आदेश आदेश आदेश। गंगा मैया की जय। हम सबके जीवन में गंगा स्वरूप हमें ज्ञान प्रदान करने वाले, नित्य और अनित्य का बोध हमारे जीवन में हमें देने वाले, और जैसे माँ गंगा का जल हमारे शरीर को पवित्र कर देता है, ठीक वैसे ही जिनकी कृपा के जल से हमारा अंतःकरण पवित्र हो चुका है, ऐसे हमारे सद्गुरु के चरणों में मेरे कोटि कोटि नमन। त्रिभुवन को तारने वाली, हमारे त्रिविध ताप को नष्ट करने वाली, हमारे जीवन के 10 पाप को हरने वाली माँ भगवती गंगा जी के चरणों में गंगा दशाहार पर्व के हेतु मेरे कोटि कोटि नमन। जो भी भक्त फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से हर गुरुवार की विचान गंगा का दर्शन और श्रवण कर रहे हैं, ऐसे सभी धर्म प्रेमी भाई बहन और सभी नाथ भक्तों को मेरा जय उदूत, जय जय मच्छिंद्र समर्थ और आदेश। माँ भगवती गंगा त्रिभुवन को तारने वाली है, सभी प्राणियों को जीवन देने वाली है। तीनों लोक में जिसकी धारा आज भी बह रही है, ऐसी त्रिपथगा माँ गंगा मैया ज्येष्ठ सुद एकम से लेके ज्येष्ठ सुद दशमी के दिनों में हजारों और लाखों साल पहले यह पृथ्वी पर अवतरित हुई। यह 10 दिन गंगा प्रागट्य के दिन माने जाते हैं। यह 10 दिन गंगा अवतरण के दिन माने जाते हैं, और यही 10 दिन सभी प्राणियों के जीवन के
मोक्षदायिनी दिनों के रूप में भी जाने जाते हैं। माँ भगवती गंगा हम सभी का उद्धार करने के लिए यह जगत में नदी के रूप में बहने लगी। सभी देवताओं के आशीर्वाद लेके ब्रह्मा, विष्णु और महेश के अनुग्रह प्राप्त करते हुए और भगीरथ ऋषि के अथाक प्रयत्न से माँ गंगा यह पृथ्वी पर अवतरित होने के लिए तैयार हुई। माँ गंगा जी का चित्र और चरित्र अति पावन है। इसलिए कहा जाता है कि जो भी सूर नर मुनिजन उनका ध्यान धरते हैं उनके मनवांछित फल उसे प्राप्त होते हैं। जो सूर नर मुनिजन गंगा नदी में स्नान करते हैं उनके शरीर के रोग नष्ट हो जाते हैं। जो सूर नर मुनिजन गंगा नदी से अपने पूर्वजों का तर्पण करते हैं वो सभी पूर्वजों को मुक्ति और मोक्ष प्राप्त हो जाता है। इसलिए गंगा जी का ऐसा पवन चरित्र है जो हम सभी के जीवन को कल्याण प्रदान करता है, निर्वाण प्रदान करता है। इसलिए गंगा मैया को देव सरिता के रूप में भी जाना जाता है। हमारी भारत भूमि की प्रमुख नदी, पवित्र नदी और पूरे विश्व की श्रेष्ठ नदी मां गंगा जी है। हम सब जानते हैं कि मां गंगा जी का चरित्र धार्मिक अनुसंधान में, सामाजिक अनुसंधान में, आध्यात्मिक अनुसंधान में या वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी अति श्रेष्ठ है। ये सभी दृष्टिकोण से देखा जाए तो मां गंगा एक अस्तित्व मिलता है, मनुष्य जीवन संपूर्ण नहीं। इसलिए आप देखिए कि मां गंगा को नदी के रूप में भी जाना जाए, मां गंगा जी को देवी के रूप में जाना जाए। अब हम यहां सोचेंगे कि मां गंगा बहती है हिमालय के पहाड़ों में से निकलती और भारत में। हमने कई बार उसमें स्नान किया है, उसके महलों को जाना है। हरिद्वार में जाते ही मां गंगा की धारा में हम स्नान करने को वहां ईशा मसीह का सत्संग भी हुआ तो हमारे मन को भी ज्ञान गंगा वहां प्राप्त है। तो यह तो हमने देखा है, यह जाना भी है कि मां गंगा सरिता के रूप में साक्षात रूप से नहीं, लेकिन जो सरिता के रूप में साक्षात देती है उसे देवी भी कहा जाता है। तो कई बार हम सोचते हैं कि सरिता के रूप में बहने वाली मां गंगा बहुत सुंदर है, लेकिन देवी के रूप में जो मां गंगा है वो कैसे हो सकती है? या किस लिए उसे देवी भी कहा गया? या किस कारण हमारे धर्म ने, हमारे शास्त्र ने उसे कुछ नहीं कहा? तो उसके पीछे का एक ही कारण है और वह कारण है सवेद के अनुसार जब वेद वाक्य मां गंगा जी देवी, उनका चरित्र देव चरित्र, उनके जीवन में उनकी उत्पत्ति से लेके पृथ्वी पर उनके अवतरण कार्य का और आज भी
यह हम एक वाक्य कहते हैं। तो सवेद तपसा सृष्टा, उसका अर्थ होता है कि यह सृष्टि का कल्याण करने के लिए, हमारे मनुष्य जीवन को सार्थक करने के लिए श्रम और तप, ये दोनों मनुष्य। श्रम का अर्थ होता है प्रयत्न करना, कर्म करना, और तपाचरण का अर्थ होता है कर्म करते हुए अपने पूरे जीवन को किसी शुद्ध और सात्विक उद्देश्य के पीछे, जिसे कहा जाता है तप, कर्म को कहा जाता है श्रम और तप के बिना न मनुष्य जीवन की सार्थकता है, न सृष्टि का, ऐसा नहीं है। और इसलिए देखिए कि जो व्यक्ति श्रम करता है और जो व्यक्ति तप करता है, वो जीवन में सब कुछ नहीं है। मां गंगा जी का चरित्र उत्पत्ति से लेकर श्रम और तप, उनके जीवन की ये दोनों बाजुएं हैं। मां गंगा जी का जिन्होंने अवतरण करवाया है, वो भगीरथ के जीवन में भी श्रम और तप, ये दोनों की महिमा है। और इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि हमारे जीवन जैसे सिक्के की दो बाजुएं होती हैं, जैसे हमारे जीवन की भी ये दो बाजुएं, जहाँ श्रम करना, तप करना, ये होता है तपाचरण और श्रम, ये तीन प्रकार से होता है। एक श्रम और एक तप सात्विक पद, एक श्रम और तप राजसिक भोजन, श्रम और तप तामसिक भोजन। लेकिन योगी कौन है, मनुष्य कौन है, देव कौन है, मुनि कौन है? जो सात्विक श्रम करेगा और सात्विक तप, यानी जंगलों में जाके कीड़ा खाए, अपने शरीर को सूक्ष्म कर देना, ये कोई तप। तप किसे कहा जाए? तप का अर्थ होता है अपने अंदर की अशुद्धियों को उठा देना। जैसे सोना होता है अग्नि में तपता है, और जब सोना तपता है तो उसकी अशुद्धियां नष्ट हो जाती है और शुद्ध रूप में हमें सोना प्राप्त होता है। ठीक वैसे ही हमारे जीवन का तप अशुद्धियों से मुक्त होने के लिए होना चाहिए। हमारे जीवन के कर्म मानवीय श्रेष्ठ उद्देश्यों के लिए होने चाहिए। जो व्यक्ति समाज कल्याण के श्रेष्ठ उद्देश्य से, धर्म के संरक्षण से के श्रेष्ठ उद्देश्य से, या सभी में परमात्मा है ऐसा साक्षात्कार करते हुए विश्व कल्याण के लिए जो भी प्रयत्न करे और उसमें अपने जीवन को परिपूर्ण कर दे, समाप्त कर दे, यह होता है सात्विक तप। हमारे ऋषि मुनि सात्विक तप और सात्विक कर्म करते थे। इसलिए उन्होंने जितने भी शास्त्र बनाए उसमें मानव जीवन के कल्याण के लिए, जीव सृष्टि के कल्याण के लिए सब कुछ सोचा गया। इसीलिए आयुर्वेद प्राप्त हुआ, इसीलिए रसायन शास्त्र हमें प्राप्त हुआ, इसीलिए तंत्र विज्ञान हमें प्राप्त हुआ, इसीलिए मंत्र शास्त्र हमें प्राप्त हुए, इसीलिए हमें धर्म ग्रंथ प्राप्त हुए। ये जो मुनियों ने हमें दिया है या ये जो विद्याएं हमें दी है,
जो जीवन हमें दिया है, यह उनके श्रेष्ठ श्रम और सात्विक तप के कारण हमें प्राप्त हुआ है। अगर ये न मिला होता तो शायद हमारा जीवन पशुओं के समान होता। इसलिए मनुष्य जीवन के कल्याण के उद्देश्य के लिए ज्ञान को साथ में रखते हुए, सभी में परमात्मा है ये भाव को जानते हुए, आत्म साक्षात्कार करते हुए जो श्रम किया जाए, अपने जीवन को उसके पीछे पूर्ण किया जाए, उसे कहा जाता है सात्विक तप। वैज्ञानिक भौतिक सुख सुविधा के लिए अपने जीवन को श्रम और तप में पलट देते हैं। आज जो हमें विज्ञान प्राप्त हुआ है, उसके पीछे वैज्ञानिक के श्रम है, उसके पीछे वैज्ञानिकों ने तपश्चर्या की है। जितने भी वैज्ञानिक हुए, उन सब ने अपने अपने क्षेत्रों में यह समाज को सुख सुविधा प्राप्त हो, इसीलिए अपने जीवन को पूर्ण किया है। और जहां सुख सुविधा प्राप्त हो, जीवन सरल हो जाए, ऐसा जहां हमें कुछ प्राप्त हो या उसके पीछे जब हम कुछ प्रयत्न करें मानव जीवन की सुख सुविधा के लिए, उसे कहा जाता है राजसी तप। इसे राजसी तप इसीलिए कहा जाता है कि यह जो सुख साधन हमें प्राप्त हुए हैं, उसका सदुपयोग और दुरुपयोग दोनों हो सकते हैं। शस्त्र को बनाया गया धर्म की रक्षा के लिए, शस्त्र को बनाया गया सुख सुविधाओं के लिए, साधनों को बनाया गया सुविधा के लिए। लेकिन यही सुविधा या यही शास्त्र जब हमारे जीवन को हानि भी करने लगे, उसका दुरुपयोग करने लगे, तो हमारा जीवन भी उसमें नष्ट हो सकता है। यही साधन और शस्त्र का उपयोग करते हुए हम अधिक से अधिक धन भी कमा सकते हैं, हमारा वैभव भी हम पैदा कर सकते हैं, हमारे भोग विलास भी हम प्राप्त कर सकते हैं। तो उसका अर्थ क्या हुआ कि जहां सुख साधन सुविधा हो, लेकिन उसकी एक इफेक्ट हमारे जीवन को हानि करने के लिए भी हो, तो उसे कहा जाता है राजसी तप। यानी विज्ञान ने हमें साधन और सुविधा दी, नए नए उपकरण दिए, नए नए शस्त्रों दिए, लेकिन उसका उपयोग दोनों ओर से होता है। किसी का भला करने के लिए भी, या स्वयं का बुरा करने के लिए, या दूसरों का बुरा करने के लिए। लेकिन जो भी मिला है उसमें सृष्टि का तो कल्याण ही हो रहा है। अगर हमें ये साधन न मिले होते विज्ञान के, तो आज हम हमारा जीवन इतनी गति से न जी सकते होते। नए नए मशीन पैदा हुए, हमारे जीवन की सुख सुविधा पूर्ण करने के लिए विज्ञान ने नए नए, हमारे शस्त्रीकरण के लिए नए नए हमें ऐसे उपकरण दिए जिससे हम हमारे राष्ट्र का हम बचाव कर सकते हैं। जितनी भी शैक्षणिक सुविधा है उसमें भी इतने ही उपकरण आए हैं। हमारी मेडिकल सुविधा, हमारा जीवन जीने के लिए, तंदुरुस्त रहने के लिए भी उतने ही उपकरण विज्ञान ने दिए हैं। ये सभी कुछ है, लेकिन उसके पीछे सुख सुविधा, भोग विलास और हमारे जीवन की नष्टता भी छिपी हुई। लेकिन जो भी मिला उससे मानव जीवन को गति मिली है। तो उसका अर्थ हुआ कि विज्ञान ने जो किया, ये वैज्ञानिकों के श्रम और तप रजोगुणी है, राजसी तप है। और तीसरा होता है तामसिक श्रम और तप। तामसिक का अर्थ है उद्यम करने के लिए, अत्याचार करने के लिए, हमारी विचारधारा को स्थापन करने के लिए, या हमारे अंदर की विकृतियों को पोषने के लिए हम जो भी श्रम और तप करें, वो तामसी होता है, जिसमें केवल हम हमारे भोग विलास का विचार करते हैं। जिसे आप देख सकते हैं कि आज बाजार में दारू बिकना, आज बाजार में
ऐसे व्यसनी पदार्थ बिकना जिसके व्यसन से हम सबके जीवन को नुकसान हो। लेकिन दुनिया में ऐसी भी कंपनियां हैं जो यह बेचती भी है, उसमें पैसा कमाती भी है, लेकिन उसके साथ साथ दूसरों के जीवन का वो नुकसान भी करती है। यह एक विकृति, ऐसी विकृति है जिससे हमारा जीवन नष्ट हो जाता है। तो ये सभी जो कुछ हो रहा है उसे कहा जाता है उद्यम। आज अपनी विचारधारा स्थापने के लिए आतंकवाद को फैलाना, जिहाद का नाम लेके इस पूरे दुनिया में एक ही धर्म को फैलाना, ये जो कुछ हो रहा है उसके पीछे जो श्रम हो रहे हैं, उसके पीछे जो तप हो रहे हैं, ये सब तामसी कहा गया है। और इसीलिए श्रम और तप दोनों होते हैं, लेकिन जहां हमारा जीवन तामसिक तप में चला जाए वहां जीवन राख समान है, जमीन पे पड़ा रहेगा। लेकिन जहां हमारा जीवन सात्विक तप और श्रम में जाएगा, राजसी श्रम और तप में जाएगा, वहां हमारा जीवन अग्नि की ज्वालाओं के समान होगा। जैसे ज्वाला आसमान में चली जाती है, वैसे हमारा जीवन प्रगति करेगा। लेकिन जहां तामसी होगा वहां जीवन राख हो जाएगा, जमीन के ऊपर ही पड़ा रहेगा। आज हम जो भी कुछ करते हैं जीवन में, ये श्रम है। हमारे परिवार के लिए जो कुछ करते हैं ये श्रम है। हमारे परिवार की सुविधाओं के लिए, उसके वहन के लिए, हमारे जीवन को हम परिपूर्ण उसके पीछे कर देते हैं, एक उद्देश्य के पीछे। कौन सी भी परिस्थितियाँ आए जिसमें हम हमारे उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हमारे जीवन को हम अनुकूल कर देते हैं, उसे कहा जाता है तप। तप का अर्थ है मन को, शरीर को और आत्मा को जैसी जैसी परिस्थितियाँ आए उस परिस्थितियों में एक आकार दे देना। जो सरहद के ऊपर जो सैनिक होता है वो श्रम करता है, मेहनत करता है, लेकिन उसका तप क्या होता है कि जितने भी महीने हैं उसमें जितनी भी ऋतुएं आती है, 3 ऋतु, ये तीनों ऋतु में अपने शरीर को, अपने जीवन को एक आकार दे देता है कि कुछ भी हो जाए मेरे राष्ट्र के लिए मैं श्रम भी करूंगा और मेरे शरीर को किसी भी परिस्थिति में मैं एक ऐसा आकार दे दूंगा जहां मेरे उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मेरा शरीर मुझे बाधा न बने। तो उसे कहा जाता है तप। तो इस प्रकार श्रम और तप हमारे जीवन की 2 बाजुएं हैं। और ऐसा ही श्रम और तप जिन्होंने सृष्टि कल्याण के लिए किया वो है माँ गंगा और दूसरे है ऋषि भगीरथ। माँ गंगा जी के चरित्र में समेण तमसा सृष्टा, ये वेद वाक्य की झांकी हमें दिख जाएगी। ठीक भगीरथ ऋषि के प्रयत्न में भी समेण तमसा सृष्टा, इसकी झांकी उनके जीवन में भी हमें दिखेगी। इसीलिए गंगा जी कैसे आई तो कहा जाता है भगीरथ प्रयत्न से आई। जहाँ हम अथाक प्रयत्न करें, सभी परिस्थितियों में हमारे जीवन को अनुकूल कर दे हमारे उद्देश्य प्राप्ति के लिए, और वह उद्देश्य विश्व सृष्टि के कल्याण का हो, तो उसे कहा जाता है भगीरथ प्रयत्न। यानी गंगा जी सृष्टि पर कैसे आई? भगीरथ प्रयत्न से आई, भगीरथ के श्रम से आई, भगीरथ के तप से आई। गंगा जी ने जब अवतरण किया तब गंगा जी को कितनी बाधाएं हुई, वो सब बाधाओं को पार करके वो आई, वो श्रम था। और आज जो बह रही है सभी परिस्थितियों में अनुकूल होती हुई, हम सबके जीवन को लाभ देती हुई, तो वो गंगा जी का तप है। इसलिए देवी कौन है? जो श्रम करे, तप करे और कल्याण करे। हमारी माँ को हम देवी कहते हैं, क्यों? हमारी माँ ने श्रम किए हैं,
हमें जन्म देते समय। जब प्रसूति हुई तो माँ को अथाक दुख हुआ, शारीरिक पीड़ाएं हुई। जब उन्होंने कितना श्रम किया तब जाके हम पैदा हुए। हमारे जन्म के समय कितनी मुश्किलें पैदा हुई, अपने शरीर को क्षीण कर दिया, उसे कहा जाता है श्रम। और मेरा बालक संस्कारी बने, मेरे बालक को किसी भी वस्तु की कमी न हो, उसका पोषण मैं भूखी रहूं और उसे करूं, यह भावना से जब बालक को बड़ा किया जाता है और मां बड़ा करती है तो अपने जिंदगी का समय अपने बालक के अनुकूल कर देती है। सभी परिस्थितियों को वो सहन करती हुई अपने बालक का पोषण करती है, उसका सर्जन करती है। तो उसको कहा जाता है तप। आज हमारे जीवन के पीछे हमारे माँ बाप ने तप किया है, तब जाके आज हमारा जीवन सुखी बना है। हम जीवन में मानवी कहलाते हैं क्योंकि हमारे जीवन के पीछे किसी के जीवन का बलिदान है, तो वो होता है तप। इसलिए हम हमारे माँ को देवी कहते हैं। क्यों? श्रम और तप यह दोनों करते हुए उसने हमारे जीवन का कल्याण किया है, उसने हमारा अस्तित्व बनाया है। आज हम खड़े रह सकते हैं उसी के कारण, हम जो आज सांस ले सकते हैं उसी के बलिदान के कारण, आज हम परिवार बड़ा कर सकते हैं उसी के मध्यम के कारण। उसका अर्थ है माँ देवी है। इसलिए गंगा जी को हमने नदी के रूप में स्वीकारा है और हमारे धर्म ग्रंथों ने उसे देवी के रूप में भी जाना है। हम सोचेंगे कि देवी कैसे, तो उसके पीछे बहुत बड़े एक चरित्र की कथा है जहाँ श्रम और तप हमें दोनों दिखेंगे। हजारों लाखों साल पहले माँ गंगा जी का अवतरण या भूमि पे हुआ। कई साल पहले हिमालय पर्वतराज और उनकी पत्नी मैना के घर 2 पुत्रियों ने जन्म लिया। एक पुत्री का नाम, जो बड़ी थी उसका नाम गंगा रखा, और जो छोटी थी उसका नाम उमा रखा। गंगा बचपन से ही दिव्य गुणों वाली थी, बचपन से ही संस्कारी थी, लेकिन वो किसी के नियंत्रण में नहीं रहती थी, हमेशा अपनी मनमानी करती थी। और उसमें इतने दिव्य गुण थे जिसे देख के कोई भी कह सकता है ये कोई अवतरित विभूति होगी। यानी ऐसी अपार शक्ति थी जो किसी के नियंत्रण में नहीं थी और अपनी ही मनमानी से, अपनी ही इच्छा से स्वतंत्र रूप में अपना जीवन जीती थी। उसकी चिंता उसके पिता हिमालय को बहुत रहती थी। और दूसरी पुत्री उमा, जो सात्विक भी थी, शांत भी थी, नियंत्रण में रहती थी, माँ बाप जो आज्ञा दे उसका पालन करती थी, उसके विषय में वो भी असाधारण थी, वो भी अपार शक्ति थी। उसे देख के भी लोग कह सकते थे कि ये कोई दिव्य विभूति है, लेकिन उसकी उतनी चिंता नहीं थी जितनी गंगा की थी। पर्वतराज हिमालय बार बार चिंतित रहते थे। एक बार देवताओं ने गंगा जी को देखा, उनके दिव्य गुणों को जाना, समझा और हिमालय जी को कहा कि आपकी ये जो पुत्री है वो आप देवलोक में दे दीजिए, हम इसे देवता लोक में ले जाएंगे और समय आने पर सृष्टि कल्याण के लिए उसका उपयोग करेंगे। इसे आप नहीं संभाल पाएंगे, इससे अच्छा है इसे आप देवता लोक में दे दीजिए। जब हिमालय ने ये सुना तो उसने सोचा मेरी पुत्री को मैं कैसे दूं, लेकिन हिमालय ने सोचा कि क्यों ना अगर
उसका भी कल्याण हो और पूरी सृष्टि का कल्याण हो, तो मैं मेरी पुत्री को देवता लोक में देने के लिए तैयार हूँ। यानी गंगा जी को देवता लोक में दे दिया गया। देवता उन्हें लेके सूरलोक में चले गए। अब उमा रह गई। उमा ने अपने शांत स्वभाव से, संयम से तपाचरण करते हुए काफ़ी वर्षों तक तप किया और तपाचरण के प्रभाव के कारण भगवान शिव को प्रसन्न किया और भगवान शिव को प्रसन्न करती हुई भगवान शिव को अपने पति के रूप में उसने प्राप्त किया। यानी उमा ने शिव को प्राप्त किया और गंगा जी स्वर्ग में जाके स्थिर हो गई। जैसे उमा का विवाह शिव से हो गया, काफ़ी समय हुआ, लेकिन भगवान शिव को कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई। इसलिए भगवान शिव ने अपने मन की इच्छा ब्रह्मा जी से कही कि काफ़ी बरस हो गए मेरे विवाह को, अब मुझे ऐसी इच्छा है कि मुझे पुत्र की प्राप्ति हो। ब्रह्मा जी सोचने लगे और ब्रह्मा जी ने सोचा कि यह कैसे संभव होगा, क्योंकि भगवान शिव का तप, भगवान शिव की ऊर्जा, भगवान शिव की ज्योति इतनी प्रबल है कि इनके तेज को संभाल कौन पाएगा। यह दुनिया में किसी भी पात्र में इतनी क्षमता नहीं कि भगवान शिव के तेज को सहन कर पाए। और ये तो भगवान शिव का अंश है, उसे ग्रहण कौन करेगा, उसे संभाल कौन सकेगा। ब्रह्मा जी भी सोच में पड़ गए। बाद में ब्रह्मा जी ने देखा कि यह पूरे जगत में देवी गंगा ही ऐसी है जो शिव के तेज को ग्रहण कर पाएगी। इसीलिए भगवान शिव ने अपने तेज को माँ गंगा जी को दे दिया। गंगा जी ने अपनी शक्ति से अपने गर्भ में शिव के तेज को संभाला और समय आने पर जो बालक पैदा हुआ उसे कहा जाता है कार्तिकेय। कार्तिकेय की माता गंगा जी बनी। भगवान शिव ने तेज दिया, उन्होंने स्वीकार कर लिया और यह तेज संभालने की पात्रता केवल और केवल गंगा जी के पास थी। अब ये जो कुछ हो गया वो पार्वती जी को पता नहीं, उन्हें बिना बताए सब किया गया। यानी पार्वती जी बहुत दुखी हुई कि मुझे बताया भी नहीं और मुझे न बताते हुए ये सब कार्य किया गया। माँ पार्वती दुखी हुई, वो नाराज हो गई और जैसे वो नाराज हुई वैसे गंगा जी ने भी कहा कि लोक कल्याण के लिए ये कार्य मैंने किया है और मैंने जो भी कुछ किया है वो मैंने बताया नहीं, फिर भी मैंने किया है। भगवान शिव के तेज को मैंने संभाला है, तो उसके लिए जो कुछ करना पड़े वो प्रायश्चित भी मैं करूंगी। और माँ पार्वती ने कहा कि उसका तो एक ही प्रायश्चित हो सकता है कि आप पृथ्वी पर जाइए और पृथ्वी पर जाते हुए लोगों का कल्याण कीजिए। स्वर्ग में मैं और आप यहाँ नहीं रह सकते। इसलिए माँ गंगा जी ने यह आज्ञा को स्वीकार किया। ये कोई श्राप नहीं था, यह आज्ञा था और यह आज्ञा को स्वीकार किया और स्वर्ग छोड़ने की इच्छा की। तब माँ उमा ने कहा कि ऐसी जब परिस्थिति आएगी तब आपको पृथ्वी पे जाना होगा और जब परिस्थिति आएगी तब मैं आपको कहूँगी बाद में आप जाना, तब तक आप स्वर्ग में रहिए। माँ गंगा जी स्वर्ग में रही और काफ़ी समय हुआ, काफ़ी बरसों बीते। उसके पश्चात अयोध्यापुरी में सगर नामक एक ईशावाक्यों के अंश में
सगर राजा पैदा हुए। यह सगर राजा के वंशज ही थे भगवान राम। तो भगवान राम के पूर्वज थे सगर, जो अयोध्यापुरी में राजा बने। सगर राजा की 2 पत्नी थी। सगर राजा को 2 पत्नी होने के बाद भी उनको पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। इसलिए उन्होंने भृगु ऋषि से प्रार्थना की कि भगवान, ये राज्य चलाने के लिए मुझे पुत्र की प्राप्ति हो। भृगु ऋषि ने कहा कि मेरे वन में आइए, वहाँ तपाचरण करें। तीनों व्यक्ति, आपकी 2 पत्नियों और आप स्वयं, तीनों यहाँ तप करें और तप करते हुए आपको संतान की प्राप्ति होगी। लेकिन किसी एक रानी को 1 पुत्र होगा और दूसरी को 60,000 पुत्र होंगे। जिसे 1 पुत्र होगा वो आपका वंश आगे बढ़ाएगा, और बाकी के जिसे को 60 होंगे, 60,000 पुत्र पैदा होंगे, वो वंश नहीं पैदा कर पाएंगे। बाद में राजा को निर्णय सौंपा गया कि आप निर्णय ले, किसको 1 पुत्र हो और किसे 60,000 पुत्र हो। सगर राजा ने निर्णय किया कि मेरी जो प्रथम पत्नी है, पहली पत्नी, उसे 1 पुत्र होगा और दूसरी को 60,000। तपश्चर्या की गई, साधना हुई। समय पश्चात दोनों को पुत्र हुए। पहली पत्नी को 1 पुत्र हुआ, उसका नाम रखा गया असमंजस। और दूसरी पत्नी के गर्भ से लौकी पैदा हुई, बहुत बड़ी लौकी पैदा हुई। वो लौकी में 60,000 बीज थे। उन सभी बीजों को घी के घड़े में रखा गया, एक एक बीज को एक एक घड़े में रखा गया, और उसमें से, उस घी के घड़े में से एक एक पुत्र हुए। यानी 60,000 घड़े में से 60,000 पुत्र पैदा हुए। अब असमंजस वो दुराचारी था, प्रजा के ऊपर अत्याचार करता था। सगर राजा ने उसे अपने देश से निकाल दिया। लेकिन असमंजस को भी 1 पुत्र हुआ, उसका नाम था अंशुमन। वो सुशील था, संस्कारी था और धर्म का आचरण करने वाला था, इसलिए उसे अयोध्या में रखा गया। राजा सगर को मन में इच्छा हुई कि मेरे इतने पुत्र है, मेरा इतना साम्राज्य है, सब सुख सुविधा मेरे पास है, तो मैं अश्वमेघ यज्ञ करूंगा, और अश्वमेघ यज्ञ करते हुए यह पूरी दुनिया का मैं चक्रवर्ती सम्राट बनूंगा। तीनों लोक के ऊपर मेरा आधिपत्य होगा। इसलिए उसने अश्वमेघ यज्ञ किया। अश्वमेघ यज्ञ किया गया। एक श्याम कर्ण वाला घोड़ा खुला छोड़ दिया गया, और उस घोड़े के गले में एक तख्ती लगा दी गई कि ये घोड़ा जहाँ जहाँ घूमेगा, जिस जिस राज्य में जाएगा, वो राजा शरणागति स्वीकार ले। नहीं स्वीकारे तो उसके साथ जो लश्कर है उसके साथ युद्ध करे, और युद्ध करते हुए अगर हार जाएंगे तो ये राज्य सगर राजा का हो जाएगा। ऐसा करते हुए एक श्यामकर्णी घोड़े को छोड़ दिया गया। वो घोड़ा पूरे विश्व में घूमने लगा। जहाँ जहाँ जाता था राजा शरणागति स्वीकार लेते थे, और वो राज्य सगर राजा के पास आ जाता था। वह घोड़े को संभालने के लिए उसके पीछे सैनिक भी छोड़ा गया कि अगर कोई घोड़े को पकड़ ले तो उसके साथ युद्ध हो जाएगा, और युद्ध करके राजा को परास्त करके वो राज्य ले लिया जाएगा। घोड़ा घूमने लगा। यहाँ यज्ञ भी चालू है, वहाँ घोड़ा भी घूम रहा है। जैसे 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 एक प्रांत वो जीतते गए, लगभग पृथ्वी लोक के ऊपर साम्राज्य स्थापन हो चुका। इंद्र राजा ने देखा कि सगर राजा ने पृथ्वी तो प्राप्त कर ली है, अब धीरे धीरे स्वर्ग में आएंगे और मेरा शासन है वो भी समाप्त हो जाएगा। इंद्र ने सोचा क्या करूं, एक युक्ति सोची, और रात को यह घोड़े को इंद्र ने चोर लिया। घोड़े को चुरा लिया और घोड़े को लेके वो पाताल लोक में चले गए। अब घोड़ा चोरी हो गया, किसी को पता नहीं कहाँ चला गया, बहुत ढूंढा गया, नहीं मिला। इसलिए यह बात सगर राजा को पता चली।
सगर राजा ने अपने 60,000 पुत्रों को भेजा कि जाओ, जहाँ जहाँ भी घोड़ा गया है वहाँ जाओ, पूरी पृथ्वी को ढूंढो, पाताल को ढूंढो, स्वर्ग को ढूंढो, लेकिन घोड़ा लेके आओ। और जिसने ये घोड़े को चुराया है उस चोर को पकड़ो और उसे जिंदा या मार के मेरे सामने ले आओ। 60,000 पुत्र बड़े क्रोध में थे। क्रोध में वो सब निकले, पूरी पृथ्वी पट पर ढूंढा, घोड़ा नहीं मिला। लेकिन किसी ने बताया कि घोड़ा तो पाताल लोक में गया है। इसीलिए पृथ्वी खोदने की शुरुआत की। जमीन खोदते 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 पाताल लोक तक चले गए। जैसे पाताल लोक पहुंचने लगे, इंद्र को लगा कि ये घोड़ा अब नहीं छिपा रहेगा। इंद्र राजा ने ये घोड़े को पकड़ के कपिल मुनि जहाँ आश्रम में तप कर रहे थे वहाँ ये घोड़े को बांध दिया। पाताल खोदते खोदते चले गए, पाताल लोक में कुछ नहीं मिला। बाद में उन्होंने देखा कि यह घोड़ा तो कपिल मुनि के आश्रम में है। बड़े क्रोध में थे, और जब हम क्रोध में होते हैं उस समय पे वास्तविक स्थिति को हम नहीं समझ पाते, जो दिखता है उसे ही हम मान लेते हैं। अति क्रोध में थे, और क्रोध में आते हुए उन्होंने एक ही दृश्य को समझ लिया कि यह घोड़ा इस ऋषि के आश्रम में, कपिल मुनि के आश्रम में है, और उन्होंने ही ये घोड़ा चुराया है, यही चोर है। ऐसा समझ के वो आश्रम में घुसे। जो आश्रम था उसे तोड़ दिया गया। कपिल मुनि तो समाधि में बैठे थे, उन्हें समाधि में से उठाने के लिए गाली गलौज की गई, ये उठे नहीं, इसलिए उन्हें मुष्टि से उनके ऊपर प्रहार किया गया, लात घूसे उनको मारे गए। मुनि समाधि अवस्था में बैठे थे और लात घूसों की बरसात की गई, गाली गलौज की गई, उन्हें मारा गया, उन्हें पीटा गया। जब ये सब किया गया तो उनकी समाधि भंग हो गई, और वो सोचने लगे कि मैं तो समाधि में बैठा था, मैंने ऐसा क्या किया कि मुझे बिना कारण मुझे मारा जा रहा है, और मारने वाले और कोई नहीं, राजा के पुत्र है और वो मुझे मार रहे हैं। ऋषि की समाधि खुली, क्रोध में आ गए और अपने क्रोधाग्नि से 60,000 पुत्रों को श्राप दिया कि समाधि में बैठे हुए एक साधु को, एक ऋषि को आप मार रहे हो, आपके संस्कार किधर गए? पूरे आश्रम को आपने तोड़ दिया। शस्त्र और शास्त्र की रक्षा करने के वजह आपने तो उसे नष्ट करने का काम कर दिया, और मेरा इतना अपमान, और वो भी बिना कारण। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि मेरे अंदर के अग्नि से आप सब जल के भस्म हो जाएंगे। उनके अंदर से अग्नि प्रकट हुआ, और वो क्रोधाग्नि में 60,000 जो पुत्र थे वो जल के भस्म हो गए। उनकी अस्थि भी नहीं मिली, जल के वहां ही भस्म हो गए। काफी दिन हो गए, न पुत्र आया न घोड़ा आया। राजा ने सोचा क्या हुआ होगा। राजा ने दूसरे आदमियों को वहां ढूंढने के लिए भेजा, और तब पता चला कि कपिल मुनि ने उसके सभी लड़कों को भस्म कर दिया है। राजा बड़े दुखी हुए। राजा दुखी हुए और राजा ने अपने पुत्र के पुत्र, असमंजस के पुत्र अंशुमान को भेजा कि जाओ उस ऋषि की माफ़ी मांगो और उन्हें कहो कि हमारे सभी भाइयों को जीवित करें। अंशुमान गए कपिल ऋषि के आश्रम में। वहाँ देखा तो अपने पूर्वजों की, अपने भाइयों की राख पड़ी थी वहाँ, घोड़ा भी वहाँ था। गुरुदेव की वंदना की। ऋषि मुनि ने कहा कि मैं क्या करूं? उन्होंने जो ये कृत्य किया उसके कारण उनका ये हाल हुआ है, तो अब क्या कर सकते हैं? तो ये जीवित तो नहीं होंगे, उनकी अधोगति हो गई, अधर्म का आचरण किया है उन्होंने, तो उनके उद्धार के लिए मैं क्या करूं? तो उनके उद्धार के लिए तो आप एक ही कर सकते हैं। सृष्टि में की जितनी भी नदियां हैं उसके किसी भी जल में इतना सामर्थ्य नहीं है कि उनके तर्पण से उनको मुक्ति मिले। अगर इनकी मुक्ति करनी है तो केवल और केवल गंगा जी को लाना पड़ेगा। स्वर्ग में गंगा जी है, उसके नीर को, उसके जल को इस भूपट पर लाइए और उसके द्वारा इसका तर्पण कीजिए तो सबको मुक्ति मगर कैसे लाया जाए? तो ब्रह्मा जी को प्रसन्न करना पड़ेगा,
क्योंकि वो ब्रह्मा जी के कमंडल में है, स्वर्ग में विहर करती हुई वो ब्रह्मा जी के पास, उसे वहां से लाना पड़ेगा। बाद में अंशुमान ने सगर राजा से बात की, सगर राजा ने तप किया, लेकिन उनकी मृत्यु हुई। मृत्यु होने के बाद अंशुमान ने सोचा कि चलो मैं मेरे भाइयों, मेरे पूर्वजों को, मेरे जो काका जो मरे हैं उनको मैं वापस लाऊं, उनका तर्पण करूं। उन्होंने तप करने की सोची और अंशुमन ने अपना राज्य अपने पुत्र दिलीप को दिया। दिलीप राजा भी बड़े प्रभावी थे, उनकी कई गाथाएं शास्त्रों में भी है। अंशुमन तप करने के लिए चले गए, तप करते करते उनका जीवन क्षीण हो गया, लेकिन गंगा जी को यह पृथ्वी पर ला नहीं सके। दिलीप को एक पुत्र हुआ, उनका नाम था भगीरथ। दिलीप ने सोचा कि मैं भी अब तप करूंगा और गंगा जी को लाने का प्रयत्न करूंगा, मेरा राज्य मैं भगीरथ को सौंपता हूं। उन्होंने अपना राज्य भगीरथ को सौंपा, वो तप करने के लिए चले गए। तप करते रहे, जीवन की समाप्ति हो गई, लेकिन गंगा जी को ला न सके। अब भगीरथ ने सोचा कि मेरी 3-3 पीढ़ी से ये तप हो रहा है, लेकिन गंगा जी आ नहीं रही, तो अब मैं प्रयत्न करूंगा, मैं साधना करूंगा, मैं तप करूंगा। अपना राज्य उन्होंने अपने मंत्रियों को दे दिया और तप करने के लिए हिमालय में चले गए। कई वर्षों तक वो 100 वर्षों तक या उससे भी ज़्यादा वो तप करते रहे। तप करते करते उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया, और ब्रह्मा जी जब प्रसन्न हुए तो ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि मैं मेरे पूर्वजों की मुक्ति के लिए तप कर रहा हूँ, गंगा जी मुझे चाहिए, गंगा का नीर इस पृथ्वी पट पे आए, ऐसा वरदान दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि ये तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि गंगा जी ऐसे तो पृथ्वी पे नहीं आएगी, उनके ऊपर किसी का नियंत्रण नहीं है, और उनकी धारा इतनी प्रचंड है कि वो पृथ्वी पे पड़ेगी तो पृथ्वी समाप्त हो जाएगी। तो ये काम तो मैं नहीं कर सकता, मैं अपने कमंडल से, अपने स्वर्ग से गंगा जी को मुक्त भी कर दूं, फिर भी उसको ग्रहण कौन करेगा? इसलिए आप शिव जी का तप करिए, महादेव की पूजा करिए। अगर महादेव प्रसन्न होंगे तो अवश्य माँ गंगा पृथ्वी पे आएगी। बाद में भगीरथ राजा ने वापस तपस्या की और भगवान शिव को प्रसन्न किया। भगवान जी प्रसन्न हुए, शिव प्रसन्न हुए, और भगवान ने कहा कि सृष्टि के कल्याण के लिए मैं गंगा के वेग को मेरी जटा में संभालूंगा। ब्रह्मा जी ने गंगा जी को आज्ञा दी कि अब समय हो चुका है, अब आप पृथ्वी पट पे जाइए, लोक कल्याण करिए, नदी के रूप में बहिए। माँ उषा ने भी कहा कि अब आप जाइए, समय आ चुका है, और गंगा जी आने के लिए तैयार हुई। गंगा जी जैसे बही, ब्रह्मा जी के कमंडल से बहने लगी। जैसे ब्रह्मा जी के कमंडल से बहने लगी, उनका वेग बहुत था। वेग को स्थिर करने के लिए भगवान विष्णु के चरणों से वो गई, चरणों का उन्हें आधार मिला। थोड़ी धारा उनकी शांत हुई, लेकिन प्रचंड धारा थी, जोर जोर से बहने लगी। भगवान शिव ने अपनी जटा को खोल दिया और अपनी प्रचंड जटा को इतना खोला कि उसमें मानो पूरी सृष्टि समा जाए। पूरी जटा को, एक एक बाल को उन्होंने खोल दिया, पूरी सृष्टि को उसमें समा लिया। गंगा की धारा बहने लगी और भगवान शिव अपनी जटा बांधने लगे। गंगा जी बहती है, शिव के सहस्त्राल के ऊपर पड़ती है, और शिव जी अपनी जटा में उसे बांधना चालू कर दिया। जैसे जैसे वेग बढ़ता है, शिव जी अपनी जटा में गंगा को बांध रहे हैं। गंगा भी समझ गई कि आज तक मेरा नियंत्रण किसी ने नहीं किया, मेरा नियंत्रण सिर्फ महादेव ही कर सकते हैं। गंगा प्रचंड रूप से बही, लेकिन शिव ने उसे स्थिर कर दिया अपनी जटा में। जैसे वो जटा में स्थिर हो गई, गंगा अदृश्य होने लगी। भगीरथ ने देखा कि मैंने इतने प्रयास से, तप से, श्रम से सृष्टि कल्याण के लिए गंगा जी को लाया,
लेकिन ये गंगा तो पुनः ब्रह्मा जी के कमंडल से निकल के शिव की जटा में स्थिर हो गई, अदृश्य होने लगी। अब क्या करो? वापस तपाचरण किया और शिव जी को प्रसन्न किया कि जो गंगा आपकी जटा में है वह गंगा की धार को पृथ्वी पर लेकर आइए। शिव जी प्रसन्न हुए और शिव जी ने अपनी एक धार पृथ्वी के ऊपर छोड़ी। वो धार जैसे पृथ्वी के ऊपर छोड़ी गई और कहा गया कि भगीरथ तुम आगे जाते रहोगे और गंगा जी तुम्हारे पीछे पीछे आएगी। जहाँ तुम रुक जाएंगे वहाँ गंगा भी रुक जाएगी। जैसे भगवान शिव ने अपनी बालों की एक लट को छोड़ दी, गंगा जी उसमें से 7 धार के रूप में बहने लगी। गंगा की एक धार नहीं थी, गंगा जब पृथ्वी पर आई तब 7 धारों में बही। जैसे 7 धार हुई वैसे 3 धार पूर्व में चली गई। उसमें एक धार का नाम है हरदिनी, दूसरी पावनी और तीसरी नलिनी। ये तीनों धारा पूर्व दिशा में चली गई और नदी के रूप में बहने लगी। दूसरी जो 3 धारा है सुचक्षु, सीता और सिंधु, जिसे हम सिंधु नदी कहते हैं, वह धारा पश्चिम में जाके बहने लगी और एक धारा गंगा के रूप में भगीरथ के पीछे जाने लगी। यानी 7 धार के रूप में वो बही और एक धारा भगीरथ के पीछे बहने लगी। भगीरथ आगे जाते हैं, गंगा पीछे बहने लगी। ये 10 दिन गंगा पृथ्वी पर बहना गंगा ने चालू रखा। आगे बढ़ती ही गई, आगे बढ़ती ही गई। हिमालय से निकलती हुई वो आगे बढ़ती गई। भगीरथ आके चले, गंगा पीछे पीछे बढ़ी। 10 दिन उसे पृथ्वी पे आते हुए और पूरी पृथ्वी में फैलते हुए यह 10 दिनों को गंगा दशहर के दिन माने गए। भगीरथ जाते गए, उसके पीछे गंगा आई। एक समय ऐसा हुआ कि जाहनु ऋषि का जहाँ आश्रम था वहाँ से भगीरथ आगे बढ़े। गंगा का प्रचंड प्रवाह जाहनु ऋषि के आश्रम में आ गया। जाहनु ऋषि के आश्रम में गंगा बहने लगी, सब कुटीर यज्ञशाला सब बहने लगी। यह देखते हुए जाहनु ऋषि को क्रोध आया और उन्होंने गंगा को पी लिया, अपने उदर में समा लिया। जैसे उन्होंने गंगा को उदर में समाया, सभी ने प्रार्थना की और अपने कानों से गंगा जी की धार को बहाया। जाहनु ऋषि ने गंगा को पुत्री माना और वहाँ गंगा जो कानों में बही उसे कहा गया कि गंगा जाह्नवी के रूप में वहाँ से बहने लगी। गंगा वापस भगीरथ के पीछे गई और जहाँ 60,000 भगीरथ के वंशजों की जहाँ राख पड़ी थी, अस्थि पड़ी थी, वहाँ तक गंगा आई। वहाँ भगीरथ ने तर्पण किया और तर्पण करते ही 60,000 उसके पितृ वातावरण में घूमने लगे। वातावरण में घूमने लगे कि अब हमें मुक्ति मिलेगी। वहाँ पिंडदान किया गया, तर्पण हुआ, दान धर्म हुआ और 60,000 पितृ वहाँ से मुक्त हुए। सभी पितृओं ने भगीरथ को आशीर्वाद दिए कि हजारों सालों से हम मुक्ति के लिए तड़प रहे थे, हम प्रेत बने हुए थे, हम सभी को तुमने मुक्त कर दिया। तुमने इस सृष्टि को गंगा जी लाके दे दी, पूरे सृष्टि का कल्याण तुमने किया, जाओ तुम्हें मोक्ष और निर्वाण प्राप्त हो जाएगा। सभी के आशीर्वाद उसे प्राप्त हुए और भगीरथ ने भी अपनी तपश्चर्या चालू रखी। तो यह 10 दिन गंगा जी के बहने के 10 दिन हैं और यही 10 दिनों में गंगा ये सृष्टि के ऊपर बही। ऐसा कहा जाता है कि हमारे धर्म में गंगा को श्रेष्ठ कहा गया, देवी कहा गया। क्यों? उसने मुक्ति दी, 60,000 प्रेतों को उसने मुक्ति दी। और हमारे शास्त्रों में परंपरा पड़ गई, हमारे धर्म में, कि श्राद्ध करना है तो गंगा के तट पर जहाँ मुक्ति मिले, अस्थि को विसर्जन करना है तो गंगा जी में करना है जहाँ मुक्ति मिले। हमारे आध्यात्म में भी परंपरा पड़ गई कि अगर तप करना है तो गंगा के घाट पर, कि जहाँ तप करते हुए हमें सकारात्मक ऊर्जा मिले और हमें निर्वाण प्राप्त हो। यानी तप करने से निर्वाण होता है गंगा के तट पर। और गंगा के तट पर पिंडदान करने से, तर्पण करने से, अस्थि का विसर्जन करने से यह जीव को मुक्ति मिलती है, प्रेत योनि में न जाए
और उसे देवलोक में उसे मुक्ति मिल जाती है। इसलिए गंगा जी का महत्व धर्म और शास्त्रों में बड़ा है। साथ साथ हमारे सामाजिक जीवन में भी गंगा जी का उतना ही महत्व है। हर एक कहवतों में, हर एक वाक्यों में हम गंगा जी का नाम भी लेते हैं। जैसा हम नहीं कहते कि हमारा मन गंगा के जैसे पवित्र होना चाहिए। क्यों? क्योंकि गंगा का जल पवित्र है। मन चंगा तो कठौती में गंगा, कबीर जी ने कहा कि आपका मन अगर स्थिर है, आपके मन में श्रद्धा है, तो गंगा घाट जाने की जरूरत नहीं। जहाँ आप बैठते हो, जहाँ सत्संग करते हो, जिस गुरु के शरण में आप हो, वहाँ ही गंगा आपको प्राप्त हो जाएगी। गुरु गीता ने कहा है, भगवान महादेव ने कहा है कि काशी क्षेत्र तन्निवासो जाह्नवी चरणोदकम गुरु विश्वेश्वर साक्षात तारक ब्रह्म निश्चितम, कि जहाँ गुरु स्वयं विराजमान होते हैं वहाँ काशी कहलाता है। वाराणसी वहाँ काशी। जाह्नवी चरणोदकम, जहाँ गुरु के चरण होते हैं, जाह्नवी यानी गंगा वहीं होती है। गुरु स्वयं विश्वेश्वर है, महादेव गुरु स्वयं है, काशी विश्वेश्वर स्वयं सदगुरु है। उनके चरणों में बैठ के अगर ज्ञान का पान करे तो तारकम ब्रह्म निश्चितम, जैसे गंगा हमें तारती है वैसे गुरु चरण भी हमें तार देते हैं। ऐसा गुरु गीता ने कहा है, यानी गुरु के चरण को गंगा ही कहा गया है। हमारे सामाजिक जीवन में भी गंगा का महत्व है कि हर एक हिंदू अपने घर में गंगा जल रखते हैं। क्यों रखते हैं? कि गंगा जल पवित्र है, भगवान की पूजा गंगा जल से होनी चाहिए। घर की पवित्रता गंगा जल छिड़कते हुए होनी चाहिए। और जब कोई आदमी मृत्यु के समीप हो तब उसमें मुख में गंगा जल की बूंदें डाल दी जाए तो उसे तुरंत मुक्ति मिल जाती है, उसे कलेश नहीं होता। व्यक्ति मर जाए फिर भी उसके मुंह में गंगा जल डाल दिया जाए तो वो प्रेत योनि में नहीं जाता, उसे तुरंत नया जन्म प्राप्त हो जाता है। तो हम सब हिंदू, हम सब सनातन संस्कृति वाले गंगा को अपने साथ में लेके घूमते हैं, अपने घर में गंगा को रखते हैं। तो हमारे धर्म में, हमारे समाज में, हमारे शास्त्रों में गंगा का महिमा है। साथ साथ आयुर्वेद ने भी माना है कि गंगा पवित्र है। इसीलिए गंगा में स्नान करने से शरीर के रोग नष्ट हो जाते हैं। क्यों नष्ट होते हैं? तो नष्ट होने का एक ही कारण है कि गंगा जहाँ से गंगोत्री से बहती है, जिस ग्लेशियरों से वो निकलती है, उसकी तलहटी में फॉस्फोरस गंधक के पत्थर है। वो गंधक के खड़क के ऊपर से वो बहती है। इसलिए गंगा में इतना गंधक है गंगा के पानी में कि जिसमें स्नान करने से हमारे चमड़ी के रोग, हमारे शरीर के रोग वहाँ नष्ट हो जाते हैं। यह आयुर्वेद ने भी ढूंढा है। और साथ साथ लखनऊ नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के निर्देशक डॉक्टर चंद्रशेखर नोटियाल ने भी कहा है कि गंगा में ई कोलाई बैक्टीरिया मारने की क्षमता है। ई कोलाई बैक्टीरिया, जो पानी सड़ जाता है उसमें ई कोलाई बैक्टीरिया होता है, हर एक पानी में होता है, जिसको पीने से हमें रोग होते हैं, पानी के रोग। लेकिन गंगा जी में एक ऐसा बैक्टीरिया बनता है जिसे कहा जाता है बैक्टीरियोफाज वायरस। गंगा के पानी में बैक्टीरियोफाज वायरस जो ई कोलाई बैक्टीरिया जो जन्म लेता है उसे वो खा जाता है वो वायरस। और जैसे वो वायरस ई कोलाई बैक्टीरिया को खाता है वैसे उसमें से वो बैक्टीरिया चला जाता है और खाने के बाद वापस वो अदृश्य हो जाता है उसी पानी में। तो बैक्टीरियोफाज नामक वायरस से ई कोलाई बैक्टीरिया नष्ट हो जाता है जो गंगा जी में होता है। और गंगा जी में ही बैक्टीरियोफाज वायरस होते हैं। और बैक्टीरियोफाज वायरस से ही गंगा का जो पानी होता है वो सड़ता नहीं है। इसलिए ऐसा एक रिसर्च किया गया कि ताज़ा गंगा का पानी लिया गया, एक बोतल में ताज़ा गंगा का पानी लिया गया, दूसरी बोतल में 8 महीने पुराना गंगा का पानी लिया गया और तीसरी बोतल में 16 साल पुराना गंगा का पानी लिया गया। यह तीनों पानी में ई कोलाई बैक्टीरिया डाल दिया गया जो पानी को सड़ा देते हैं।
ताज़ा पानी में जब ई कोलाई बैक्टीरिया डाला गया तो वो 3 दिन तक गंगा के पानी में जीवित रहा, बाद में मर गया, उसका प्रभाव बाद में खत्म हो गया। 8 महीने वाला जो पानी था गंगा का, उसमें ये बैक्टीरिया डाला गया तो वो 8 दिनों तक जीवित रहा, बाद में अंदर से वो मर गया। और 16 साल पुराना पानी था, उसमें ये बैक्टीरिया डाला गया तो वो 3 महीने तक जीवित रहा, बाद में वो मर गया। तो गंगा जी में जो पानी को सड़ा देने वाला जो बैक्टीरिया होता है, जिससे हमें रोग होते हैं, ई कोलाई, उसको मारने का वायरस गंगा के पानी में पैदा होता है, बैक्टीरियोफोर्स, जिसके कारण वो बैक्टीरिया को मार देता है। पानी सड़ता भी नहीं और हमें रोग भी नहीं होता। और इसलिए कहा जाता था कि अंग्रेज जब इंडिया में आते थे, राज करते थे, और जब अपने देश वापस जाते थे अंग्रेज अफसर, तो अंग्रेज अफसर गंगा का पानी लेके जाते थे। क्यों? क्योंकि वो जहाज में जाते थे, और जहाज में जाते थे, पानी बिगड़ जाए, बाकी सब पानी बिगड़ जाता था, तो गंगा का पानी लेके जाते थे, जो काफ़ी समय तक, बरसों बरस तक बिगड़ता नहीं था। और अपने देश में गंगा का पानी लेके जाते थे। वहाँ से जो पानी लेके आते थे वो सड़ जाता था, लेकिन यहाँ से गंगा जल लेके जाते थे, वो वहाँ पहुँचने के बाद भी वो सही सलामत रहता था, सड़ता नहीं था। जब अंग्रेज युद्ध करते थे तब भी वो गंगा के पानी को अपने साथ रखते थे दवा के रूप में, कि अगर जख्म हो जाए और गंगा के पानी से वो जख्म को साफ कर दिया जाए, तो गंगा में पानी में ऐसा वायरस होता है जो एंटीबैक्टीरियल, कि जो घाव हुआ है उसमें जो बैक्टीरिया पड़े हैं उसको भी वो मार देता है। शरीर में जख्म को भरने वाला और बैक्टीरिया को, एंटीबैक्टीरियल वायरस गंगा के पानी में होता है। इसलिए गंगा के पानी से वो लोग घाव साफ करते थे कि ये घाव आगे नहीं बढ़े, बैक्टीरिया मर जाए। तो अंग्रेज भी ये गंगा के पानी को दवा के रूप में मानते थे। तो आयुर्वेद ने भी माना, मेडिकल साइंस ने भी माना कि गंगा में प्लेग को मारने की क्षमता है, गंगा में होज नामक रोग को मारने की क्षमता है। ऐसा हमारे मेडिकल साइंस ने भी माना है। तो गंगा आयुर्वेद के रूप में, मेडिकल साइंस के रूप में, सामाजिक रूप में, धार्मिक रूप में, आध्यात्मिक रूप में, शास्त्रोक्त रूप में भी गंगा श्रेष्ठ है। और गंगा का पानी अमृत समान है। बाकी सब नदियाँ 25 किलोमीटर बह के पानी के कचरे को साफ करती है, लेकिन गंगा जी के वेग में इतना पावर है कि 1 किलोमीटर अगर गंगा बहे तो उसमें जो पानी का कचरा है वो साफ हो जाएगा। अंदर पड़े हुए कचरे को साफ करने की क्षमता 1 किलोमीटर गंगा बहे उसमें साफ हो जाता है। और ऐसे कहा जाता है कि गंगा जी के पानी में ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन खींचने की क्षमता है। ये ऐसा पानी है जो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को खींचता है। उसी के कारण साधु संत सन्यासी वहाँ तपस्या करते हैं। क्यों? कि पानी में ऑक्सीजन मिल, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन खींचता है। अब जहाँ गंगा बहती है वहाँ बहती गंगा को स्पर्श करते हुए पवन भी बहता है, जिसमें ज़्यादा ऑक्सीजन हो और उसके ऊपर से पवन बहेगा तो हमारे श्वास में भी ज़्यादा ऑक्सीजन हमें प्राप्त होगा। इसलिए गंगा के घाट पर भर्तृहरि ने भी कहा कि तप करूं तो गंगा के घाट का, कि गंगा के घाट पर तप क्यों करना है? गंगा के बहते पानी से जो पवन आए उसमें सांसों में ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन हमें प्राप्त हो, ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त हो। इसीलिए वहाँ तपाचरण किया जाता है, वहाँ सत्संग किए जाते हैं, वहाँ धार्मिक क्रिया की जाती है, वहाँ अस्थि विसर्जन किया जाता है। उससे गंगा जहाँ से बहती है वहाँ इतनी जड़ी बूटियाँ हैं हिमालय में कि जड़ी बूटियों को स्पर्श करती हुई बहती है, ग्लेशियरों को स्पर्श करती हुई बहती है। तो जब गंगा नदी के रूप में जब आए उसके पहले ही एक अमृत जैसा एक मिश्रण तैयार हो जाता है, जो मिश्रण नहाने से, पीने से, गंगा का पानी स्नान करने से हमारे जीवन को पावन कर देता है, हमें सुरक्षा प्राप्त होती है। इसलिए गंगा का महत्व सभी रूप में माना गया है। इसलिए गंगा का चरित्र देखा जाए देवी का चरित्र है, और गंगा का कार्य देखा जाए तो देविक कार्य है, नदी के रूप में आज भी बहने वाला कार्य है। योगिक मार्ग में तो गोरखनाथ जी ने भी कहा है कि जब साधक अपनी कुंडली जागरण कर लेता है, एक आकाश गंगा है और एक पाताल गंगा है। आकाश गंगा यानी सहस्त्राल चक्र, जहाँ कुंडली चली जाए वो आकाश गंगा,
और पाताल गंगा यानी मूलाधार चक्र। तो पाताल गंगा और आकाश गंगा के रूप में भी जब कुंडली का जागरण हो तो उसे नाम दिया गया है कि कुंडली पाताल गंगा से निकलती हुई आकाश गंगा में चली गई, उसे भी गंगा कहा गया है। हर एक रूपक के रूप में गंगा जी को स्थान दिया गया है, इसलिए गंगा देवी भी है, गंगा सरिता भी है। और उसका सबसे बड़ा एक प्रमाण है कि जब स्वामी विवेकानंद अमेरिका में गए और स्वामी विवेकानंद ने धर्म परिषद की और उनकी चर्चा जब चलती थी कॉन्फ्रेंस, तब एक इंग्लिश पत्रकार ने उन्हें पूछा कि स्वामी जी हमें एक बात बताइए, क्या आपके भारत में तो कई नदियां हैं, तो आपके भारत की कौन सी नदी ऐसी है जिसका पानी सबसे ज़्यादा पवित्र है? तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा यमुना नदी का पानी सबसे ज़्यादा पवित्र है। तो सब आश्चर्य में पड़े, नहीं सच में मैं पूछता हूँ कौन सी नदी का पानी सबसे ज़्यादा पवित्र है? वापस विवेकानंद जी ने कहा यमुना नदी का पानी सबसे ज़्यादा पवित्र है। सब आश्चर्य में पड़े। वापस वो पत्रकार ने प्रश्न पूछा कि आपके भारत में तो ऐसा कहते हैं कि गंगा का पानी सबसे ज़्यादा पवित्र है और आप कहते हैं यमुना का पवित्र है। तब स्वामी विवेकानंद ने कहा नदियों में यमुना नदी का पानी सबसे ज़्यादा पवित्र है, गंगा नदी नहीं है। आपने नदी के विषय में पूछा, इसलिए कहता हूँ कि गंगा नदी नहीं है। नदी में यमुना का ज़्यादा पवित्र है, लेकिन गंगा नदी नहीं है। गंगा हमारी माता है और गंगा का पानी अमृत है। इसे हम नदी नहीं मानते, गंगा हमारी माता है और गंगा का पानी अमृत है। नदियों में यमुना का पानी पवित्र है। अब सोचिए कि स्वामी विवेकानंद जी ने गंगा को तो नदी भी नहीं माना, गंगा को माँ माना है। आज नदियों के कारण ही हमें अन्न मिलता है, जल मिलता है, वनस्पति, औषध, ये सब का पोषण कौन करता है? नदियाँ करती है। बारिश का पानी कौन हम तक पहुंचाता है? नदियाँ पहुंचाती है। हमारे फेंके हुए कचरे को भी नदियाँ साफ कर देती है। तो नदियों के घाट के ऊपर विकसित होने वाली संस्कृति हमारी संस्कृति है। इसलिए कहा गया ना कि सिंधु नदी के तट पे जो संस्कृति बनी वो हिंदू संस्कृति थी। तो जहाँ जहाँ नदी बही वहाँ संस्कृति बही। पर गंगा तो नदी ही नहीं है, नदी तो है पर नदी के साथ साथ माता है, देवी है। यानी उसका पानी तो हमारे जीवन का उद्धार करता है, हमारे जीवन से रोग भगाता है, हमें योग से मोक्ष तक जो पानी पहुंचाता है वो गंगा का है। इसलिए स्वामी विवेकानंद जी ने उसके पानी को अमृत कहा। अब आप सोचिए कि स्वामी विवेकानंद जी जब कह दे कि ये अमृत है तो गंगा देवी है। अगर हम उसे देवी के रूप में मानेंगे तो कभी गंगा जल में हम कचरा नहीं फेंकेंगे। हाँ, लेकिन हम नदी के रूप में मानेंगे तो गंगा जल में हम कचरा फेंकेंगे, हमारे साबु फेंकेंगे, साबु के ऊपर के रैपर फेंकेंगे, हम प्लास्टिक फेंकेंगे। आज गंगा जी को प्रदूषित किसने किया? हमारी मानसिकता ने। हमने नदी माना इसलिए हमने प्रदूषित किया। अगर गंगा को देवी माना होता तो हम कचरा नहीं फेंकते। आज गंगा जी में इतना कचरा फेंका गया है वो भी प्रदूषित होने लगी। तो हमें समझना चाहिए कि जिस गंगा को हम नदी समझते हुए मैला करते हैं, यह गंगा आदिकाल से बहने वाली हमारी देवी है, हमारी माँ है, हमारी संस्कृति है। इसलिए हम सब भाग्यशाली रहे कि हमें हरिद्वार में 2017 में हरिद्वार में गंगा के घाट पर हमें 2 दिन का ईशावास्यम प्रवचन मिला और 2 दिन हम सब ने गंगा में स्नान किया। गंगा दशहरा के समय ही हमने गंगा की आरती की, पूर्णाहुति के दिन, और गंगा के तट पर जो धार्मिक स्थान बने थे वह हमने दर्शन किए। हमारे जीवन में हमने स्नान भी किया, गंगा पर ध्यान भी किया, सत्संग भी किया, तीर्थ स्थानों में हमने दर्शन भी किए। तो हम सब नाथपंथी भाग्यशाली है कि हमें ईशावास्यम और गंगा का स्नान मिला। तो ये जो हमें स्मरण प्राप्त हुआ है, ये गंगा दशहरा के दिनों में उसी स्मरण को हमें बार बार
स्मरना है, उसका ही चिंतन करना है। ये गंगा दशाहर के 10 दिनों में तो गंगा जी नदी के रूप में और देवी के रूप में हमारी संस्कृति में हमें उपलब्ध हुई है। तो हर गंगा दशाहर में उसका स्मरण और चिंतन करना है। और हम ज़्यादा कुछ न कर सके तो एक श्रम और एक तप हमें करना है कि जब भी हम गंगा जी के पास या हमारी भारत भूमि में किसी भी नदियों के पास हम जाए, एक ही काम हमें करना है, हमें कभी भी गंगा जी में कचरा नहीं फेंकना है। या हमारी भारत भूमि की जितनी भी नदियां हैं, हम संकल्प करें किसी भी नदी में हम कचरा नहीं फेंकेंगे। हम स्नान जरूर करेंगे, बिना साबु से स्नान करेंगे। गंगा में आप उतरते हो तन और मन को शुद्ध करने के लिए, तो साबु की क्या आवश्यकता है? जहाँ गंगा में इतना बल है, गंगा में इतना औषध है, तो साबु की कोई आवश्यकता नहीं। तो जब भी हम किसी भी नदी में स्नान करेंगे बिना साबुन से करेंगे। यह फिर कोई भी नदी हो, गंगा ही नहीं, किसी भी नदी में हम स्नान करेंगे साबुन से करेंगे। अगर हमें ऐसा लगता है कि हमारा माथा हमें धोना है, बाल धोने हैं, तो मिट्टी से धोएंगे, क्योंकि मिट्टी भी स्वच्छ करने का काम करती है। लेकिन प्रण करें, आज के दिन एक तप करें, पूरे जीवन तक हम कभी भी किसी भी नदी में साबु से नहीं नहाएंगे, किसी भी नदी में हम कचरा नहीं फेंकेंगे। हम उसे देवी मानेंगे, गंगा हो या कोई भी नदी हो। और श्रम करेंगे, अगर कचरा हो तो उसे हम उठा के बाहर फेंक दें। अगर ये श्रम और तप हमने किया तो नदियाँ भी पवित्र होगी, हमारी संस्कृति पवित्र होगी, हमारा जीवन पवित्र होगा। ज़्यादा कुछ न कर पाए, इतना हम जरूर करेंगे। ऐसा संकल्प आज के दिन हम सब नाथपंथी भक्त हमारे जीवन में लेते हैं। तो गंगा दशहरा का पवित्र दिन, और मैं हर गंगा दशहरा के दिनों में सुबह शाम गुरु चरणों में एक दीपक प्रज्वलित करता हूँ, और उसे मैं ऐसे समझता हूँ कि मैंने गंगा में उसे बहाया है। और जब मैं वो प्रज्वलित करते हुए प्रार्थना करता हूँ कि गुरुदेव आपका चरण गंगा है, उसी में मैं एक दीपक बहा रहा हूँ। ये जो भी दीपक है, ये मेरे तमाम भक्तों की ऊर्जा है, तमाम भक्तों का आत्मकल्याण हो, यह समझते हुए एक दीपक मैं आपके चरणों में हर गंगा दशहरा में मैं प्रज्वलित करता हूँ कि हम सभी भक्त ज्ञानी बने, हम सभी भक्त ध्यानी बने, और हम सब अपने जीवन में श्रम और तप करें और पूरी सृष्टि का हम कल्याण करें। ऐसी दिव्य भावना के साथ मैं गुरुदेव के चरणों में हर गंगा दशहरा में दोनों समय पे एक एक दीपक प्रज्वलित करता हूँ। यह मेरी एक मानस पूजा है कि मैं गुरुदेव के चरणों में गंगा के बहाव में मैं दीपक प्रज्वलित करूँ। तो आओ हम सब साथ मिलते हुए गंगा जी का स्मरण करते हुए आज गुरु चरणों में ही बैठे हैं। आप जहाँ प्रवचन सुनते हो, समझ लीजिए चांदवी चरणोदकम, गुरु के सानिध्य में आप बैठे हो, गंगा के सानिध्य में आप बैठे हो। तो 2 मिनट गंगा जी का स्मरण करते हुए 25 बार मन में गुरु मंत्र बोले, 25 बार मन में हर हर गंगे बोले, और मन से मानस पूजा के भाव से एक दीपक गंगा जी में हम अर्पण करते हैं। ऐसा सोचते हुए एक दीपक अर्पण करें और सृष्टि के कल्याण की भावना करें। तो आओ हम सब साथ मिलते हुए 25 बार गंगा जी का स्मरण करें, गुरु मंत्र बोलते हुए।
गोरक्ष झालंधर चरपटाश्च अड़वंगकानीफमच्छेन्द्रराज्य चौरंगी रेवाणक भर्तुरिसज्ञा भूम्याम्बभूलनाथ सिद्धः जय जय मच्छेन्द्र समर्थ जय जय मच्छेन्द्र समर्थ जय जय मच्छेन्द्र समर्थ सारनाथ महाराज की जय छोटे दादा की जय। अब गंगा जी की गायत्री जो मैंने बनाई है यह गायत्री का मैं यहाँ से पाठ करूँगा। आप सब भी वहाँ बैठे हुए मेरे साथ मैं जैसे बोलूँ वैसे माँ गंगा की गायत्री जो मैंने बनाई है उसका हम पाठ करेंगे। भगीरथी गंगा दिव्येय विद्महे भगीरथी गंगा दिव्येय विद्महे सद्ज्ञान स्वरूपाय धीमहि सद्ज्ञान स्वरूपाय धीमहि तन्नो तन्नो शिव शिव शिर शिर स्वारी स्वारी प्रचोदयात् प्रचोदयात् ॐ ॐ चैतन्य चैतन्य भगीरथी भगीरथी गंगा दिव्येय नमः गंगा देव्यै नमः। ॐ चैतन्य ॐ चैतन्य भगीरथी भगीरथी गंगा दिव्येय नमः गंगा देव्यै नमः। ॐ चैतन्य ॐ चैतन्य भगीरथी भगीरथी गंगा दिव्येय नमः गंगा देव्यै नमः। अब आंख बंद करते हुए हाथ को ऊपर उठाते हुए हम गंगा जी का स्मरण करेंगे। हर हर गंगे भागीरथी 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 हर हर गंगे भागीरथी। गंगा मैया की जय। तो गंगा दशहर के पावन दिनों में माँ गंगा का स्मरण, हरिद्वार के सत्संग का स्मरण, गुरुदेव का स्मरण हमने किया। बस माँ गंगा की कृपा सभी भक्तों पर बनी रहे और आपका ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग आगे और आगे बढ़ता जाए, ऐसी प्रार्थना करता हूँ।
आज का भंडारा गंगा दशहरा का भंडारा है और हर गंगा दशहरा में प्रवीण भाई ईश्वर भाई पटेल कुंभारिया, जो वर्तमान समय में अमेरिका में रहते हैं, पिछले 10 सालों से हर गंगा दशहरा के गुरुवार पर उनकी ओर से भंडारा रहता है। और गंगा दशहरा के भंडारे के दिनों में मेरा एक नियम बन गया है कि हर गंगा दशहरा का जो भंडारा होता है उसमें प्रेम रस के रूप में आम रस प्रसाद के रूप में भंडारे में दिया जाता है। यह आम रस सभी भक्तों को भंडारे में, साथ साथ रास्ते के ऊपर जहाँ प्रसाद पहुँचाया जाता है फुटपाथ के ऊपर, वहाँ भी, वृद्धाश्रम में भी, और आज के दिन कोविड सेंटर में भी दिया जाएगा। बिलीवरा में, मैंगूस में जो कोविड सेंटर है उसमें पूरे स्टाफ, जितना भी स्टाफ है अस्पताल का, उसे आज आम का रस और जो भी भंडारा बनाया है वो वहीं पहुंचेगा। साथ साथ पुलिस स्टेशन में भी आज का प्रसाद पहुंचाया जाएगा। आज का महाप्रसाद आम रस यानी प्रेम रस, पूरी, कड़ी पुलाव, पनीर भुर्जी की सब्जी, इडला और आम का अचार, यह आज के दिन का भंडारा है। यह पूरा भंडारा पूरे स्टाफ को, अस्पताल में दर्दियों को, सभी भक्तों को, रोड के ऊपर, वृद्धाश्रम में और पुलिस स्टेशन में भी जितने भी कांस्टेबल है वहाँ पहुँचाया जाएगा। तो ये महाभंडारा है माँ गंगा के पावन दिनों में, गंगा दशहरा के दिनों में। तो आज का प्रसाद प्रवीण भाई ईश्वर भाई पटेल कुंभारिया अमेरिका में है, उनकी ओर से उनके परिवार को भक्ति शक्ति मिले ऐसी प्रार्थना करता हूँ। भंडारे में योगदान हुआ है सिद्ध अन्न के रूप में पंकज भाई कस्तूर भाई पटेल कुकेरी 25 किलो चावल, रेवाबेन चौधरी व्यारा 14 किलो चने की दाल, शंकर भाई गामित टेम का 20 किलो चावल, बिपिन भाई गामित तारपाड़ा, बाज जिसमें हम खाते हैं 1000 नंग बाज दड़िया, योगेश भाई गामित गोड़चित 20 किलो चावल, रमीलाबेन चौधरी कड़ोद 5 किलो चीनी, अम्बाबेन पटेल मसाल 5 किलो चीनी, मनोज भाई नवीन भाई चौधरी जयसिंहपुरा 7 किलो सब्जी और 15 किलो आम, संजय भाई एम पटेल अंबाज 40 किलो चावल, खालपा भाई पटेल कोपरली 35 किलो चावल, महेंद्र भाई पटेल अंबाज 20 किलो चावल। गौशाला में योगदान 3 टन घास चारा मनोज भाई चौधरी जयसिंहपुरा की ओर से, और आर्थिक योगदान के रूप में भी यहाँ योगदान आया है डॉक्टर कनु भाई के रूप में। तो जो भी सीधा अन्न के रूप में आर्थिक योगदान या जो भी कुछ योगदान हुआ है उन सभी भक्तों के लिए भी मैं प्रार्थना करता हूँ, सब सुखी रहे, तंदुरुस्त रहे और भक्ति मार्ग में प्रगतिशील रहे। तो इसी प्रकार से हर गुरुवार का सत्संग योग्य रूप में पहुंचाया जाएगा और आज गंगा दशहरा का सत्संग आप तक मैंने पहुंचाया है। आज से 1 साल पहले फूड पैकेट के रूप में रास्तों के ऊपर हमने जहाँ जहाँ भूखे बैठे थे वहाँ 2000 से भी ऊपर फूड पैकेट हमने पहुंचाए थे। उसमें भी प्रेम रस, आम का रस सबको हमने दिया था प्रसाद के रूप में। तो जैसे गंगा बहती रहती है वैसे नवनाथ धाम का महाप्रसाद भंडारा है, वो भी भूखों तक, रोगियों तक, भक्तों तक, सूर नर मुनिजन सब तक, ये जैसे गंगा बहती है वैसे भंडारे का प्रसाद भी बहता जाता है और सब तक पहुंचता है। तो ये भी धारा अविरत ही रहेगी। तो आज के गुरुवार तक को बस इतना ही। सब घर में ही रहे, जब जब भी ज़रूरत पड़े तो डॉक्टर का संपर्क करें और सब एक दूसरे को संभाले, पूजा भजन भक्ति पाठ करते रहे। आज के गुरुवार पर इतना ही। सभी भक्तों को मेरा जय उदुद, जय जय मच्छिंद्र समर्थ और आदेश। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णोदच्यते पूर्णस्य पूर्णमदाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।